ایک ماں رات بھر روتی رہی، اس کا بیٹا گھر میں تھا لیکن اس نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بیٹا آپ ہیں؟ دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید آپ کو اندر سے ہلا کے رکھ دے۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بیوی کی وجہ سے، غیر محرم لڑکی کی وجہ سے، دنیا کی چکا چوند کی وجہ سے اور اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے اپنے والدین کو دکھ دیا، اپنے والدین کو تکلیف دیا، اپنے والدین کی نافرمانی کیا، اپنے والدین کو تنہا چھوڑا۔ تو میرے عزیز، اس گناہ کا عذاب قرآن و حدیث میں اتنا دردناک ہے جسے آج اگر آپ نے اچھے سے سمجھ لیا تو قسم خدا کہ آج سو نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسلام میں ماں باپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ تو میرے عزیز، آپ نے ابھی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ایک چھوٹا سا لفظ اف اپنے ماں باپ کو اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے، یعنی اپنے والدین کو ایک بھی لفظ ایسا نہیں بولنا ہے جس سے آپ کے والدین کو ناگواری گزرے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے والدین کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، آج ہم اپنے والدین کا فون نہیں ریسیو کرتے ہیں، آج ہم اپنے والدین سے بات نہیں کرتے ہیں، آج ہم اپنے والدین کے ساتھ چلاتے ہیں، چیختے ہیں، بلند آواز سے بات کرتے ہیں، اور پھر اپنے والدین کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میری بیوی ناراض ہے، اور اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے والدین پر چلاتے ہیں، چیختے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی اپنے والدین کو تم اف تک نہیں کر سکتے۔ تو آپ سمجھدار ہیں، اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی اپنے والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ رحمت کا بازو جھکائے رکھو اور دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج کا بیٹا کبھی اپنی ماں کے ساتھ 10 منٹ بیٹھتا نہیں ہے۔ اگر ماں پیار سے کہتی ہے کہ بیٹا آؤ میرے پاس بیٹھو تو وہ بیوقوف بولتا ہے کہ وقت نہیں ہے، مجھے بہت سارا کام ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اے بیوقوف، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا بیٹا کل آپ کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئے گا جس طریقے سے آج تم اپنے والدین کے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، کیونکہ تجھے میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا شکر اور والدین کا ایک ہی جملہ میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں میری ہی جانب لوٹنا ہے۔ تو پھر تمہارا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دن ساری چیزوں کا حساب کتاب ہوگا کہ آپ نے اپنے والدین کو کتنی بار رلایا ہے؟ آپ نے اپنے والدین سے کیوں بات نہیں کیا؟ آپ اپنے والدین سے کیوں الگ ہو گئے؟ ان ساری چیزوں کو کل میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ اس وقت آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کا انجام کیا ہوگا؟
अब आइए जरा हदीस की रोशनी में देख लेते हैं कि पैगम्बर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के बारे में क्या फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, कुलना बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? हमने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करना और अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। आपने खुद सुना कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करना और अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। इसका मतलब ये हुआ कि झूठ बोलना, कत्ल करना, ज़िना करना, इन तमाम गुनाहों से बड़ा है माँ बाप की नाफरमानी करना। यानी झूठ बोलने से बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना, ज़िना करने से बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना, कत्ल करने से बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना। इसलिए कि जब आप माँ बाप को तकलीफ देते हैं तो आप माँ बाप को नाराज नहीं करते हैं, बल्कि उस जात को नाराज करते हैं जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, जिसने आपको जन्नत और जहन्नम का मालिक बना रखा है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिदल्लाहि फी रिदल वालिदैन व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिदैन। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में है और अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा माँ बाप के गुस्से में है। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐ मेरी कौम के मुसलमान, जरा एक मिनट के लिए आप संजीदगी के साथ सोचें कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप रोजा रख रहे हैं, आप हज कर रहे हैं, आप ज़कात दे रहे हैं, आप दुनिया की सारी इबादतें कर रहे हैं, लेकिन आपकी माँ आपसे नाराज है, आपका बाप आपसे नाराज है। तो बताएं आप मुझे कि क्या आपकी नमाज कबूल होगी? क्या आपका हज कबूल होगा? क्या आपकी दुनिया की सारी इबादतें कबूल होंगी? क्या आपकी मेहनत और मजदूरी अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कबूल होगी? हरगिज नहीं। इसलिए कि पैगम्बर आज़म ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी है माँ बाप की रज़ामंदी में और अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा है माँ बाप के गुस्से में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं तो दुनिया की कोई इबादत आपकी कबूल नहीं होगी। जब अल्लाह आपसे गुस्सा है, अल्लाह आपसे नाराज है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादत को कबूल करेगा? आप खुद फैसला फरमाएं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके माँ का कदम कहाँ है? आपने अपने माँ के कदम को आखिरी बार कब छुआ था? आपने अपने माँ के कदम को आखिरी बार कब दबाया था? जरा खुद सोचें आप कि हम किस मकाम पर आकर खड़े हो गए हैं। हम किस दुनिया की लालची में आकर अपने वालिदैन से अलग हो गए हैं। हम किस दुनिया की दौलत की लालची में आकर अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह बयान फरमाया, कुल्लु ज़ुनूबि युअख्खिरुल्लाह मिन्हा मा शाअ इला यौमिल क़ियामह इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन फ़इन्नल्लाह युअज्जिलुहा लिसाहिबिहा फिल हयाति क़ब्लल ममात। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों की सजा को क़यामत तक मुअख्खर कर देता है, सिवाय वालिदैन के नाफरमानी करने वालों के। उसे अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहगार को मरने से पहले ही दुनिया में दे देता है। यानी तमाम गुनाहों की सजा मरने के बाद होगी, लेकिन एक गुनाह है जिसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला आपको मरने से पहले भी देता है, और वो है अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। यानी अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले सजा में मुब्तला कर देता है। ये वो गुनाह है जिसकी सजा के लिए क़यामत तक इंतजार नहीं करना पड़ता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी सजा दुनिया में भी देता है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि आज दुनिया में एक से एक बढ़कर पैसे वाले रो रहे हैं और लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं, लोग अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें इंसानों के साथ क्यों हो रही हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज लोग अपने वालिदैन से अलग हो चुके हैं। आज लोग अपने वालिदैन को रुलाते हैं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको तरह तरह की सजा में मुब्तला करते रहता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, मलऊनुन मन अक्का वालिदैहि, यानी मलऊन
है वो शख्स जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मलऊन उसे कहते हैं जिससे अल्लाह की रहमत दूर हो। अब जिस शख्स से रहमत इलाही दूर हो जाए तो वो कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है, वो कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो सकता है, और वो दुनिया में जलीलो खार होके मरेगा और आखिरत में भी जलीलो खार होगा। ना वो दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है, ना वो आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। मेरे अजीज, अब यहाँ से मैं आपको कुछ ऐसे वाकयात को सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनकर शायद आप अंदर से बदल जाएं। एक मर्तबा की बात है कि एक बुढ़िया माँ थी, उसका सिर्फ एक बेटा था। उस बेटे को बुखार आ गया। वो बुढ़िया माँ रात भर उस बेटे के बुखार को चेक करती रही, रात भर उसके सर के पास बैठकर जगी रही। पूरी रात गुजर गई लेकिन वो बुढ़िया माँ सोई तक नहीं। आखिरकार वो बेटा शिफायाब हो गया, आखिरकार वो बेटा सही हो सालिम हो गया। और वही बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, मेरी बीवी आपकी वजह से नाराज रहती है, आप इस घर से निकल जाएं। जैसे ही बुढ़िया ने इस जुमले को सुना उसके आंख में आंसू आने लगे। लेकिन कुर्बान जाओ माँ पर, उस माँ ने कभी अपने बेटे को सवाल तक नहीं किया कि बेटा, जब तुम बीमार रहते थे तो मैं पूरी रात जगी रहती थी ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए, और आज तुम जवान हो गए, आज तेरी शादी हो गई तो तुम अपनी बीवी की वजह से मुझसे अलग हो रहे हो। बुढ़िया ने उस बेटे से कुछ ना कहा, सिर्फ एक जुमला कहा, ठीक है बेटे, तुम खुश रहो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ। और आखिरकार वो बेचारी बुढ़िया अपने सामान को उठाती है और लड़खड़ाते हुए कदमों से घर से निकल जाती है। दूसरा वाकया ये है कि एक बाप था, उसका सिर्फ एक बेटा था, और वो बाप हमेशा मेहनत और मजदूरी करता था ताकि अपने बेटे की पढ़ाई में पैसा दे सके, ताकि अपने बेटे को एक अच्छा डॉक्टर बना सके। वो बाप जो अपने बेटे की पढ़ाई की वजह से कभी नया कपड़ा नहीं पहना, वो बाप जिसने अपने बेटे की पढ़ाई की वजह से ईद के दिनों में पुरानी चप्पल पहना, और वो बाप खूब मेहनत और मजदूरी करने के बाद भी अपने बेटे की पढ़ाई की वजह से अच्छा खाना कभी ना खाया हो। वो बाप अपने बेटे की पढ़ाई की वजह से कभी अपने शौक को पूरा ना किया हो। वो बाप 15-15 घंटे तक किसानी करके, हल जोत के, मेहनत और मजदूरी करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। अब वो बेटा एक बड़ा शहर में जॉब करने लगा और आखिरकार उसने अपने ही पसंद से एक लड़की से शादी कर ली। जब बाप का फोन जाता है कि बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम घर कब आओगे, मैं तुम्हें देखने के लिए बेताब हो गया हूँ, वो बेटा अपने बाप को जवाब देता है कि अब्बा, मैंने शादी कर लिया है, मैं अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ यहाँ खुश हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। अब वो बेचारा बाप जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत और मजदूरी करके डॉक्टर बनाया था, उस बाप की आंखों में आंसू जारी हो गए। उस बाप का दिल शीशे की तरह टूट गया और वही बाप रोते रोते अपने दिल में ये कहा कि बेटा, यही दिन देखने के लिए मैंने मेहनत और मजदूरी करके, नमाज छोड़ के, रोजा छोड़ के, हज छोड़ के, सारी इबादतों को छोड़ के तुम्हें डॉक्टर बनाया, सिर्फ यही दिन देखने के लिए। और आखिरकार वो बाप फांसी लगाकर मर गया। और तीसरा वाकया ये है कि एक बेटा था, उसने प्यार करके शादी किया था। कुछ दिनों तक वो लड़की उसके घर में रही और एक बार अपने शौहर से बोली कि या तो मैं इस घर में रहूंगी या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी, अब तुम खुद फैसला करो, या तो तुम अपनी माँ को रखो या तो मुझे रखो। अब वो बेवकूफ, नादान, जाहिल, अल्हड़, गधा वो अपनी माँ को उस घर से निकाल देता है और अपनी बीवी को रखने के लिए तैयार हो जाता है। मैं उन जालिम बेटा से कहना चाहता हूँ, ए बेवकूफ, एक लड़की की वजह से तूने अपनी माँ को छोड़ दिया। याद रखना, लड़कियां तो तुम्हें 1000 मिल जाएंगी, एक बीवी मर जाएगी तो दूसरी बीवी आएगी। अल्लाह ने तुम्हें 4-4 शादी करने का हुक्म दिया, तेरे पास 4-4 बीवी होंगी, लेकिन जब एक माँ तेरी हाथ से निकल जाएगी तो पूरी दुनिया छान लो, कभी तुझे वो माँ दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन एक हकीकी माँ तुझे कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के मुसलमान, अभी भी आप तन्हाई में जाकर के सोचें कि क्या आपकी माँ के आंखों में जो आंसू है वो आपकी वजह से है? आपके बाप जो तकलीफ में पड़ा हुआ है, क्या वो आपकी वजह से है? क्या कभी आपने बाप को फोन करके प्यार से बात किया?
क्या आपने वालिदैन की जरूरत के वक्त उनसे मुंह फेर लिया? अगर ये सारी बातें सच है और आपने अपने वालिदैन के साथ ऐसा किया है तो अभी भी वक्त है। अभी जाओ, फौरन अपनी माँ के हाथ को थामो, अभी भी वो जिंदा है। जाओ, अपने वालिदैन को खुश करो, अपनी माँ का पैर दबाओ और अपने माँ बाप से माफी मांगो। वरना याद रखना मेरे दोस्त, जब तक ये माँ बाप जिंदा है कदर कर लो, वरना जब ये माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे तो पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। आप रो रो कर मर जाओगे, आप नाक जमीन में रगड़ के मर जाओगे, आप कब्र पे जाके खूब सर पटकोगे, खूब दुआ करोगे, लेकिन वालिदैन की आवाज को नहीं सुन पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जिन लोगों की माँ बाप अभी जिंदा है वो फौरन जाए अपने वालिदैन से माफी मांगे। आज से ये अपने आप में प्रॉमिस करें, वादा करें कि आज के बाद से इंशाअल्लाह अपने वालिदैन को आप नाराज नहीं रखेंगे। जब तक आपके वालिदैन जिंदा रहेंगे आप हमेशा उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। और जिनकी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है वो खूब अपने वालिदैन के नाम से इसालो सवाब करें और कलाम मुकद्दस की खूब तिलावत करें और अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपने वालिदैन से जाकर माफी मांगे और एक खुशहाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करें।